ویلکم بیک ناظرین، آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے اوپر اور مدارس کی مخدوش صورتحال پر، اس میں سے بچیوں کے معاملے پر جو کہ باجوڑ سے لا کے اور ان کو وہاں پر غائب کیا جا رہا ہے کراچی پولیس کی سربراہی میں. اور ایک اور واقعہ وہاں پر جو رونما ہوا ہے کل، ایک مفتی اعجاز اللہ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ پٹیل پاڑے پہ کوئی مدرسہ ہے، وہاں پر اس نے 11 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کو وہاں کے بڑے مفتی جو ہیں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں گے دوبارہ علی محمد نقوی صاحب کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس بارے میں ان کے پاس کیا معلومات ہیں. جی جناب، میں تو پہلے تو آپ سے عرض کر دوں کہ مدارس کی آڑ میں ایسے مدارس جن کو مدارس کہنا بھی نہیں چاہیے کہ جو دہشت گردی کی تربیت دے رہے ہیں یا دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں موجود ہیں، اور وہاں سارے کام ہوتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ایسے مدارس جو مدارس پہ دھبا ہیں تو ان مدارس کا تو یہ روٹین ورک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ خبریں بہت پہلے بھی آتی رہی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ان کے علماء اس کو دباتے رہے ہیں، اس کو چھپاتے رہے ہیں، مستقل یہ ہو رہا ہے. اگر صحیح سے اگر ان مدارس آپ سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا اور اب بھی میری ایک دفعہ جب بات ہوئی تھی داعش کے اوپر، تو جو پاکستان سے بھیجے جا رہے ہیں بیسیکلی تو داعش جو ہے تو بند تو یہی رہی ہے نا. جی ہاں، اور یہ تو یہی کی ہے، باہر جا کے داعش ہو گیا انہوں نے ہے. تو یہ تو یہاں تو فیکٹری چل رہی ہے نا، یہاں تو مثلا بنائے جا رہے ہیں لوگ. تو داعش کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو کام پہلے چل رہا ہے. پاکستان کے شیعہ تو وہ ہلکا ترین ٹاسک ہے کہ جو 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے میں بھگتا دیے جائیں گے. یہ تو حزب اللہ بیٹھی ہے، عراق کے اتنے شیعہ ہیں کثیر تعداد میں، سیریا میں جو اہل سنت ہیں، ان سب نے روک کے رکھا ہوا ہے. ورنہ پاکستان کو تو میرے خیال ہے کتنی دیر میں تو آپ کا قبلہ آپ کا کہنے کا مقصد تھی کہ جی بالکل ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، تو بس یہ آخری چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ضرب عزم وغیرہ کر رہے ہیں یہ جب تک ناکام رہے گا جب تک باقاعدہ پولیس کے اندر سے کاری بھیڑیں نہیں نکالی جائیں گی. مختصراً قائد محترم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ضرب عزم کا فائدہ ہمیں اس وقت ہوگا جب اس کو ہر دہشت گرد کے گریبان تک پہنچایا جائے گا. اب وہ دہشت گرد چاہے وردی میں ہو یا بغیر وردی کے ہوں، ایسے پولیس والے بھی جو کہ اس طرح کی انٹروگیشن میں، انویسٹیگیشن میں یا ان معاملات میں اپنے ظاہری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے منٹوں میں ختم کر دیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں گے کون لوگ کون آنے والے. فرضی 2 لوگ بھیج دیا آپ نے، معاملہ دبا دیا حکومت اس کو، اور کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میرے ساتھ تو نہیں ہوا جس طرح اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. مجھے بتائیے باجوڑ میں ایسا کون ملیارڈ آدمی ہے جس نے 100 خاندانوں کو جو ہے قرضہ دیا ہوا ہے، یہ 5-5 ہزار روپے میں ساری بچیاں لے کے آ گئی ہے. عجیب مذاق بنا ہے نا. آپ کو پتا ایک بچی کو مبارکہ میں بھیج رہا ہے کہ بیٹا جاؤ نظر دیا ادھر اور بھروا دیا جائے، آپ کو تو ٹاسک پورا ہو گیا. ہم تو دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم تو ہر چیز کو اس شک کی حالت میں دیکھیں گے. ہم تو اس پولیس والے کو بھی مشکوک سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے یہ آدمی ہو، چاہے نہ ہو، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اچھا مولانا صاحب کی حالت میں حالت جنگ میں یہاں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ دیکھیں آپ ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں، اہل سنت ہے، حکومت ہے، دوسرے ہمیں نہیں دیکھتے، جیسا آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ہم مر رہے ہیں لوگوں کو فکر نہیں ہے. آپ سے میرا یہ مؤدبانہ سوال ہے، ریکویسٹ ہے، اس کا آپ جواب ضرور دیجیے گا کہ ہم شیعہ آپس میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا اپنا کیا ہے؟ بہن میں آپ نے سوال ایسا کہہ دیا کہ میرے جواب کے بعد آپ کے بعد بہت سارے فون آئیں گے، اور اس میں پاکستان سے بھی ہوں کہ بھائی امام حسین نے جو ہے لوگوں کو حلیم بریانی پہ نہیں لگایا تھا، مقصد حسین پہ لگایا تھا. اب وہ مقصد کچھ اور بن گیا ہے، ہم نے شکم پوری کرنے کا یا شکم شیئر کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. محسوس ہوتے ہیں اب ہمارے کوئی انٹرٹین ہے نہیں، کیا کریں؟ عزاداری کو عزاداری کے طریقے سے باتیں رکھیں. حسینیت کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہا تھا اور میں یہ آپ کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ دجال آ چکا ہے، سفیانی کا انتظار ہے، دجال اپنا کام کر چکا ہے. امیر شام کا اور ابن زیاد کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ سیدھے ہاتھ پہ تلوار تھی، الٹے ہاتھ پہ دینار اور درہم تھے. آج سیدھے ہاتھ پہ کلاشن کوف ہے، الٹے ہاتھ پہ ڈالرز ہیں.
दिख रहे हैं, लोग सर्व हो रहे हैं, चाहे वो जाकिरीन की सूरत में हो, चाहे उलमा की सूरत में हो, चाहे अवाम की सूरत में हो, ये आपके पीछे पूरी काम हो रहा है। एक हाथ से कत्ल किया जा रहा है, एक हाथ से जो है बेचा जा रहा है लोगों को। ये दीन नहीं रहा। वो यानी शिया इस जमाने के अंदर यजीद से नफरत तो करें, मगर हरकत यजीद सबके अंदर मौजूद हो, तो क्या हुसैनियत मिट नहीं जाएगी? ऐसे हुसैनियत को दबाम दें, हुसैनियत को। यानी अगर मैं गरीब आदमी हूँ और चाय पाते पे मैं मजलिस करूंगा तो 4 आदमी नहीं बैठे होंगे मेरे यहाँ, और अगर मैं ही खाना करूंगा तो 150 आदमी 250 आदमी आ जाएंगे। पहले हम शिया अपने आप को दुरुस्त करें। हो सकता है मेरे बाद लोग आपको सवालात करें, तो मेरा क्रिटिसाइज करना नहीं है, मेरा इरादा ये है कि आने वाले खतरे की तरफ से आगाह कर दूं कि भाई मारने ये नहीं देखेगा क्या कर रहे हो, वो ये देखेगा कि आप हुसैनी हो, इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, मौला की विलायत पे हो, आपको कत्ल कर लिया जाएगा, सब कत्ल हो जाओगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो बहुत कीमती वक्त दिया। तो ये तो थे जनाब मौलाना अली मोहम्मद नकवी साहिब, पाकिस्तान से तहरीक जाफरिया सूबा सिंध के नायब सदर। आपने इनकी सैर हासिल गुफ्तगू सुनी, जिसमें कि उन्होंने बाकायदा खुल के जो है वो नाम भी लिए कि पुलिस ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और कहाँ पर कौन कौन शामिल है और कौन कौन लश्कर जंगवी और इनको सपोर्ट कर रहा है और इनके टारगेट किलर को, मगर उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं होने दे रहा। तो ये तो था सारा मामला हमारा पाकिस्तान से। और अब हम चाहेंगे कि हमारी लाइव कॉल जो है वो ओपन कर दी जाएं, और उसके साथ हम आपको जो है वो दिखाएंगे 2 तस्वीरें जो उन 2 ख़वातीन से मिलवाएंगे आपको कि उन्होंने जो है दाइश के जो रोब दबदबा था, जो उन्होंने अपना जो कत्लेआम करने के बाद जो मामलात धाक बिठाई थी, उनको उन्होंने किस तरह से ज़ेरो ज़बर किया है। तो मैं MCR से गुजारिश करूँगा कि वो 2 तस्वीरें उन ख़वातीन की और ईरान में हुई जो तकवीरियत के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस है उसकी पिक्चर डिस्प्ले करें, और इसी के साथ हमारी लाइव कॉल्स को ओपन कर दें ताकि हम प्रोग्राम में अपने लाइव कॉलर्स को शामिल कर सकें। तो आपने अभी सारी गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छा उनसे आपने बिल्कुल बहुत तवील गुफ्तगू मौलाना साहब की जो है वो हुई है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम को बहुत अच्छे से लेके चले। जनाब ये तस्वीरें थी बच्चियों की, जिन बच्चियों को मदरसों में लाया गया था। मैं यहाँ पर एक बात सोच रही हूँ, देखिए हम बच्चियाँ पेरेंट्स ये सब कर रहे हैं, सवाल ये कि बच्चियों के पेरेंट्स का क्या मौक़िफ़ है? आया उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती में इनको दिया है या खुशी से इनको दिया है, या वो जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया कि भाई 100 फैमिलीज़ को कर्जा देने वाला वहाँ कौन पैदा हो गया? ये तो पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो होना इसके अंदर चाहिए। देखिए बहुत सारे सवालात निकलते हैं कि मामला के ये एक पूरी एक लॉबी है जो कि बाकायदा किस तरह से ये घरों से लाते हैं। पेरेंट्स ने खुशी दिया है, ये तो पेरेंट्स पे बच्चियों पे हम देखें, मैंने खुद फुटेज जो देखिए ये वो खातून है जिनके जवान साल बेटे को तालिबान ने कत्ल किया, उसके जवाब में इन्होंने 25 तालिबान कत्ल किए। अगर इंसान जो है वो देखें दफ़ा शर के लिए, इसको आप दहशतगर्द नहीं कहेंगे, दफ़ा शर के लिए अगर कोई क़याम करता है तो जो है वो बड़ा मतलब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इनकी जो बैठी हुई धाक थी वो निकाल दी। और एक और खातून की पिक्चर है जो कि मैं चाहूँगा कि MCR से वो भी चलाएं, तो वो आपने देखा। और आप हमारे साथ लाइव कॉल्स पर भी आ सकते हैं, नंबर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि दूसरी तस्वीर भी आप चलाएं जो कि कोबानी से है, जो कुर्दिश खातून है। जब दाइश ने वहाँ पर कोबानी के ऊपर हमला किया तो इस जुर्रतमंद लड़की ने 100 दाइशी दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि एक बिला वजह का हुआ एक धाक बिठाई जा रही है कि जी वो पाकिस्तान में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 2 तस्वीरें चलाई और वो भी दोनों औरतों की चलाई जो कि इनको 100 और 25 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार सकती हैं। तो पाकिस्तान में क्यों इनसे मुकाबला नहीं हो सकता? क्यों स्ट्रेटेजी वजह नहीं होती? क्यों पुलिस डर रही है? क्यों फौज हाथ बांधे खड़ी है? क्यों गवर्नमेंट के पैर कांप रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? ये एक सवाल है। जब ये 2 औरतें जो है क़याम करके इनका जो है वो बेड़ा गर्क कर सकती हैं, तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी सिक्योरिटी के इदारे, इतनी आपकी मुस्तहकम सारी एजेंसियां, खुफिया इदारे आखिर कहाँ सो गए हैं? क्यों नहीं क़याम कर सकते? इसमें खौफ वाली कौन सी बात है? और इसके साथ हम एक तस्वीर और भी चलाना चाहेंगे। मैं अपने कॉलर को पहले शामिल कर लूँ प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मौसी भाई, मकसूद से सीधा कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बड़ा सब्जेक्ट आप लेके आए हैं, बहुत नाजुक किस्म का, उसमें बात कहने की है, लेकिन क्या किया जाए, रोक के की जाए, उसको तकलीफ अंदाज में बयान किया जाए।
दुबई में बच्चे ऊँटों की स्मगलिंग, ऊँटों की दौड़ के लिए पाकिस्तान से स्मगल होकर छोटे बच्चे आते थे, 5, 6, 7 साल के बच्चे, जो ऊँट पे 2 बच्चे लाद दिए जाते हैं, उसको दौड़ाया जाता है तो बच्चों की चीखें निकलती हैं, तो उनसे ऊँट दौड़ता है, ऊँट बहुत भागता है बच्चे की चीख से। अल्लाह। इसके लिए हमने 2006 में लिखना शुरू किया था, ये बच्चे कहाँ से स्मगल होते हैं? पाकिस्तान से। कहाँ आते हैं? दुबई। ऊँट की गर्दन में बांधे जाते हैं। आ रहे हैं बहुत मुद्दत से। उनके वालिदैन क्या करते हैं? रिपोर्ट देते हैं, पुलिस में जाके तलाश करते हैं, नहीं मिलता। इसके पीछे कौन है? सैकड़ों की तादाद में लोग आकर तुर्की में छोड़ दिए जाते हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ, मैंने ये पूरा इस अलमिये का पूरा जिक्र किया है उन बच्चों से जो बाखुदा पत्ते खा के यहाँ तक पहुंचे हैं। बरतानिया ने उन्हें बाद में क्या किया ये अलग बात, पत्ते खाकर पहुंचे। और इसके अलावा यूनान में ले जाने वाले लोगों को जहाज में मार दिया। 6 आदमियों को मारने का मैं गवाह हूँ। मेरे एक अजीज को वहां दफन कर दिया गया था, उसको 6 महीने की मुद्दत में माँ बाप ने कई लाख खर्च करके उसकी लाश को यूनान से लिया। ये क्या सिलसिला है? बच्चियां कहाँ प्रॉफिट है? यूरोप में कौबा खानों के लिए पहले लोग विजिटर के तौर पर मंगवाते थे, पाकिस्तान से कौबा खानों के लिए औरतों को विजिटर के तौर पर मंगवाया जाता था। इसमें बहुत रिकॉर्ड है। मुसलमान कहाँ तक पहुंच गए हैं? यहाँ तक कि बर्मिंघम के स्कूल में जो सस्ता हलाल खाना गोश्त का मुकर्रर किया जाता है, मुसलमान बच्चों को पोर्क खिलाता रहा है। ये बिल्कुल अखबार के तराशी मेरे पास मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। तो ये बच्चियां फरोख्त होती हैं। कितने में? कौन लोग करते हैं? 5 साल से मदरसा चल रहा, किसी को पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसकी फिक्र नहीं, क्या नहीं हो रहा। आप ये सोचिए कि क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में, वो बहुत कुछ रहा है। हम कहाँ तक रोएंगे, क्या करेंगे? वो मदरसा मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन ये सब दिखावे की बातें हैं। पुलिस में अगर कोई कह देता है कुछ, किसी को जब पुलिस को फिक्र होती है तो वो उसकी बोरी बंद लाश मिलती है। ये बहुत लंबे मामलात हैं, इनमें ना जाइए तो अच्छा है। ज़ाहिरन बस जैसा हम कुछ कर सकते नहीं। पूरे का पूरा मुल्क बदलना बहुत मुश्किल है। पूरे का आवा बिगड़ा हुआ है। नया जो खतरा सबसे बड़ा इस्लाम से है, यूरोप को, अमेरिका को सबसे बड़ा इस्लाम से खतरा था। उसने अफगानिस्तान पे हमला कर देखा, इराक में सब कुछ कर दिया, फाटा में कर दिया। इससे नई बात बनी तो अब मुसलमानों के साथ तकफीरियों को लाके खड़ा कर दिया। वो अपने फतवे देते हैं, उनके फतवे में हराम औरतों से निकाह जायज है, उनके फतवे में निकाह बिल जिहाद निकाह। अल्लाह अकबर। ये सारे कहाँ तक पहुंचेंगे? मुसलमानों को इस तरफ उलझा दिया गया है। एटमी ताकत है पाकिस्तान, क्या फर्क पड़ता है? एटमी ताकत है तो है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अपने मसाइल से हल नहीं हो पाएंगे। बहुत करब और दुख की बात है। एक बात को छेड़िए तो फिर बहुत लंबी दूर चली जाती है। मैं एक अजमाली तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई कानून उस मुल्क में, जिस मुल्क में कोई कानून हो वहाँ रोना रोया जाता है। जिस मुल्क में ये हालात हो, क्या कर सकते हैं आप? इसकी कतन कोई जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, आप ये देखें क्या नहीं हो रहा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे आप। और इसी के साथ हमारे पास नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना। अच्छा, ब्रेक अभी थोड़ी देर के बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। तो आपने गुफ्तगू सुनी कि ये सब मामलात कोई ऐसे ढके छुपे नहीं हैं, ये सब इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक है। और हमसे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो सिस्टम में एक मुख्तसर से ब्रेक पर नाज़रीन हम जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो उस गुफ्तगू को यहाँ से शुरू करेंगे। देखते रहिएगा हिदायत टेलीविज़न।